Assalamu alaikum. Hello everyone. I welcome you all once again to the Society of Free Educators, session 9 of communication skills of the content learning class. So any of you can please let me know if my screen is visible and my voice is audible. Is there anyone who can confirm? Okay, let's start with the session today. So सर आज आवाज बहुत कट कट के आ रही है। don't worry, you'll get the recording later on. I think this is not clear. It's breaking. Just give me 1 second. Okay, so let's start with the session. I think there is a network congestion issue here in JNT today. Let's have a quick recap of what we have learned earlier. We have learned in the verbal session, we have learned how to use the word late differently in 6 different ways. हमने देखा था कि late word को 6 अलग-अलग तरीके से कैसे use किया जाता है. Where we understood that there are 3 ways we can use late word in accordance with the time, and then as the grammatical use of late varies according to the sentences. We can use it as an adverb, we can use it as an adjective as well. Apart from that, late is used for someone who has died recently or who has passed away. And then we understood the word recycle. Recycle is when you give something to someone for free. It's a way of recycling, but you don't expect anything in return of it. And then we understood what is fact chance. Fact chance is opposite of what it's supposed to be. Fact chance is actually a very small chance of something happening. And then we understood the word root analysis of ALG, E or I, and ambi, ambul, or ami, or amo. And then we were completed with the subject verb agreement, where we understood the last rules of subject verb agreement, including exceptions of infinite pronouns and certain plural pronouns. So let's start with the session today. We are going to understand how to use the word quite in 4 different ways. Uh, as far as the meaning of quite word is concerned, it's a certain significant extent or degree. तो quite होता क्या है? Quite का meaning होता है किसी चीज का किसी डिग्री तक या किसी एक्सटेंट तक सही होना या अच्छा होना, ठीक है. ये ना बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है. ये एक बीच वाली वैल्यू होती है जो ना ज्यादा हो और ना कम हो, और एक किसी एक्सटेंट तक सही हो, किसी हद तक किसी चीज का सही होना. जब हम बोलना होता है तब हम वर्ड क्वाइट यूज करते हैं, और इसी के हम आज 4 तरीके देखेंगे वर्बल स्किल्स में. लेट्स गो विद द फर्स्ट वन. इसका एक और मीनिंग होता है, हम जिसको कहते हैं फेयरली. फेयरली मतलब ठीक ठाक, ठीक है. ये ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक ठाक, अच्छा खासा. बिफोर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. अब देखो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले कैसे इस्तेमाल होता है. यूज टू मीन लेस देन वेरी, बट मोर देन अ लिटिल. देखो ए लिटिल हो गया बहुत कम, और वेरी हो गया बहुत ज्यादा. जैसे मैंने कहा ना कि क्वाइट का मीनिंग क्या होता है, कि ज्यादा से थोड़ा सा कम और बहुत कम से थोड़ा सा ज्यादा. तो इसको हम पहले देखते हैं एडजेक्टिव से पहले कैसे यूज होता है. इट्स क्वाइट कोल्ड टुडे. कोल्ड एक एडजेक्टिव है. कोल्ड क्या है? कोल्ड प्रॉपर्टी बयान कर रहा है ठंड की, कि आज सर्दी थोड़ी सी ज्यादा है, ना बहुत कम और ना ही बहुत ज्यादा, बस थोड़ी सी ज्यादा है, फेयरली कोल्ड. अब देखते हैं इसका एडवर्ब में कैसे यूज होता है. कोल्ड इसमें एडजेक्टिव था. लेट्स सी हाउ इट इज यूज्ड फॉर एन एडवर्ब. इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवीली इन द मॉर्निंग. आज सुबह बारिश बहुत तेज हो रही थी, ठीक है. रेनिंग जो है, रेनिंग इज वर्ब एंड हैवीली इज एडवर्ब. बारिश का गिरना एक वर्ब है, काम है, और बहुत हैवीली जो है वो उसका एडवर्ब है. वो बयान करता है कि बारिश तेज गिर रही थी या हल्की गिर रही थी. तो हैवीली इज एडवर्ब, रेनिंग इज वर्ब, एंड क्वाइट इज व्हाट वी आर यूजिंग. देन बिफोर ए वर्ब. अब किसी काम से पहले कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्वाइट को. इट कैन बी यूज्ड बिफोर ए वर्ब, लाइक
और enjoy, ये जो दो verbs है ना, like और enjoy, इनसे पहले हम quite word को use कर सकते हैं. Let's see how goes and what's. There is an example that I have chosen for it. I quite enjoy watching a game of cricket, but I do not play it. अब ये complex sentence है जिसमें एक से ज्यादा verb है, एक subject है और गेम ऑफ क्रिकेट ऑब्जेक्ट है. देखो क्वाइट कैसे यूज हो रहा है इसमें. लेट्स सी. आई क्वाइट एंजॉय इज अ वर्ब. ओके, एंजॉय इज अ वर्ब एंड देन वॉचिंग इज ऑल्सो ए वर्ब एंड प्ले इज ऑल्सो ए वर्ब. अभी सेंटेंस का मीनिंग है कि मेरे को क्रिकेट का गेम देखना बहुत अच्छा लगता है मगर मैं उसको खेलता नहीं. तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आए ना जिसमें मेरे को एंजॉय या लाइक का वर्ड यूज करना है या एक सेंस बतानी है कि हाँ मेरे को अच्छा लगता है या फिर मेरे को पसंद है, उसमें हम क्वाइट वर्ड यूज करते हैं वर्ब से पहले. वॉचिंग इज अ वर्ब जिससे पहले हमने एंजॉय को यूज किया एंड देन इट सिंस इट्स ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इट इन्वॉल्व्स थ्री डिफरेंट वर्ब्स. लेट मी ऐड एवरीवन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट two uses of the word fight. The third one is before an adjective plus noun. देखो जिस भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के साथ में नाउन होगा हम क्वाइट उससे पहले यूज कर सकते हैं. इसमें और पहले रूल में सिर्फ इतना सा फर्क था कि एडवर्ब और एडजेक्टिव अलग अलग थे. जरूरी नहीं है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव एक ही सेंटेंस में एक ही साथ हो, मगर यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन एक साथ होना जरूरी है. इट कैन बी यूज्ड टू मीन लेस देन वेरी बट मोर देन ए लिटिल, एग्जैक्टली जैसे पहले में था. सो लेट्स सी द एग्जांपल. माय ब्रदर इज क्वाइट ए गुड क्रिकेटर. अब देखो क्रिकेटर इज ए नाउन, जो बंदा क्रिकेट खेलता है उसको क्रिकेटर कहते हैं और गुड उसका एडजेक्टिव है, अच्छा क्रिकेटर, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा क्रिकेट प्लेयर. तो इसके पीछे मैं क्वाइट वर्ड यूज कर सकता हूँ. माय ब्रदर इज क्वाइट ए गुड क्रिकेटर. वो ना ही बहुत खराब है और ना ही बहुत बेहतरीन है मगर वो अच्छा क्रिकेटर है. एंड द लास्ट यूज ऑफ द वर्ड क्वाइट इज वी कैन यूज क्वाइट प्लस नाउन. अब देखो ये कैसे काम करता है. क्वाइट और नाउन एक साथ यूज हो सकते हैं जिसमें मेरे को ये दिखाना है कि चीज बहुत इंप्रेसिव है या बहुत बेहतरीन है. अगर मुझे कहना ना कि एक आला दर्जे की चीज है, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, तो मैं उसमें क्वाइट वर्ड यूज कर सकता हूँ. लेट्स सी एन एग्जांपल. माय ब्रदर इज क्वाइट ए ड्राइवर. मेरा भाई एक अच्छा ड्राइवर है. देखो ड्राइवर इज अ नाउन और क्वाइट इसके साथ लगता है. ठीक, तो एक अच्छा ड्राइवर है मेरा भाई. यहाँ पर क्वाइट का मीनिंग है इम्प्रेसिव या वेरी. बिफोर वी गो फर्दर you can let me know if you have any questions. I'll wait. Okay, no one has any question. Let's move forward. Let's move on. Uh, so coming to the section of daily lessons, everybody know this guy. आप सब जानते हो ये कौन है, ये बॉक्सर कौन है. तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. इनका नाम है मोहम्मद अली. इनके लिए हमेशा ये कहा जाता था कि ये हरा नहीं पाएंगे. जब भी ये किसी के साथ बॉक्सिंग करने जाते थे तो सब बोलते थे ये हरा नहीं पाएंगे, ये हरा नहीं पाएंगे, और ये हर बार हरा देते थे. जैसे ये जो पर्टिकुलर फोटो है इसमें जो नीचे बंदा गिरा वो सनी लिस्टन है. सनी लिस्टन अपने जमाने का बहुत बेहतरीन बॉक्सर था और मोहम्मद अली नया नया आया था. या फिर इनका एक फाइट हुआ था जॉर्ज फोरमैन के साथ. जॉर्ज फोरमैन आज तक का सबसे खतरनाक बॉक्सर्स में से एक है जो 2 या 3 राउंड में बॉक्सिंग का मैच खत्म कर देता था. तो मोहम्मद अली उनसे भी जीते थे, उनको भी हराया था. 8 राउंड का मैच हुआ था. तो ये एक पिक्चर बहुत आइकनिक बन गई थी. अब इसमें हमें क्या पता लगता है. एक ये चीज पता लगती है कि दिस इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था फिर भी ये जीत के, और ये जीते थे तो ही अचीव द टाइटल. ठीक है, तो हमारा वर्ड आज इसी के आगे पीछे है कि जब कोई बंदा कोई काम कर जाता है और उससे वो चीज एक्सपेक्ट नहीं होती तो हम क्या फ्रेज यूज करते हैं. देयर इज अ फ्रेज, पंच अबव योर वेट. अपने वजन से ज्यादा पंच करना, झेल लेना. और इसी को अगर हम मीनिंग इसका देखेंगे तो इट्स टू अचीव बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाए उसके उससे भी ज्यादा अचीव करना.
इसकी एग्जांपल देखते हैं. सम स्मार्टफोन्स आर रियली पंचिंग अबव देयर वेट. कुछ स्मार्टफोन्स अपने रेट से बहुत ज्यादा अच्छे हैं. दे आर चीपर एज कंपेयर टू रेगुलर कंपनीज बट गिव प्लेंटी ऑफ नाइस फीचर्स. वो रेगुलर कंपनीज जो हैं उनसे सस्ते हैं मगर फीचर्स उनके बहुत अच्छे हैं. तो मतलब कुछ फोन्स अपने प्राइस के हिसाब से बहुत बेहतरीन है. उनका प्राइस देखकर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतने अच्छे फीचर्स देंगे. वैसे ही हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसकी. आफ्टर माय रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड माय पेरेंट टोल्ड मी दैट आई पंच्ड अबव माय वेट. ठीक है. मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और मेरे पेरेंट ने मुझे बोला, मेरे फादर या मेरी मदर ने मुझे बोला कि हाँ तुमने जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे तुमने ज्यादा अचीव किया. और इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं. क्रोएशिया पंचेस अबव इट्स वेट. क्रोएशिया एक कंट्री है जो हर बार एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अचीव करती है व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल. जब क्रोएशिया फुटबॉल में उतरती है सारे सोचते हैं ये हारेगी और वो हमेशा जीतती है. आई थिंक दिस इज क्लियर. और लेट मी नो इफ समवन हैज एनी क्वेश्चंस. Okay, let's move on with the next phrase. Uh, See, what is this? This is a shoe and this is called clog. अब देखो क्लॉग क्या होता है. क्लॉग एक ऐसा जूता होता है जिसका सोल लकड़ी का हो, या लकड़ी की चप्पल या लकड़ी के जूते को क्लॉग कहते हैं. ठीक. और पूरा वर्ड है क्लॉक्स क्योंकि ये हमेशा पेयर में होता है. जैसे ग्लास नहीं, चश्मे को ग्लास नहीं कहा जाता, ग्लासेस कहा जाता है. वैसे ही क्लॉक्स कहा जाता है. क्लॉग अकेला वर्ड यूज नहीं होता. मगर इस पर ये फॉक्स बनी हुई है और फॉक्स होती है क्लेवर. ठीक है. तो हमारा जो आज का फ्रेज है दूसरा वो भी ऐसा ही है. क्लेवर और अनोइंग. क्योंकि फॉक्स अनोइंग होती है. अनोइंग होता है जिसको आप पसंद नहीं करते, मतलब जो आपको इरिटेट करे. तो हमारा जो वर्ड है वो है क्लेवर क्लॉक्स. अब क्लेवर क्लॉक्स क्या होता है. कुछ लोगों को आदत होती है ऐसा दिखाने की कि उनको सब कुछ आता है और इसी चक्कर में वो इरिटेट करने शुरू हो जाते हैं दूसरों को, या दूसरों को वो इरिटेटेड इरिटेशन होना शुरू हो जाती है उनको देखते ही. तो ऐसे लोगों को क्लेवर क्लॉक्स कहा जाता है. इसका मीनिंग देखिए. समवन हु इज अनोइंग बिकॉज दे थिंक दे नो मोर देन एवरीवन एल्स. एक ऐसा शख्स जो इरिटेट कर देता है दूसरों को या दूसरों को पसंद नहीं आता सिर्फ इस वजह से कि उसको लगता है कि उसको बाकियों से ज्यादा मालूम है. हर वक्त उसको लगता है कि तो उसको बाकी से ज्यादा मालूम है. इसको क्लेवर क्लॉक्स कहा जाता है. इसकी एग्जांपल देखते हैं. इफ यू आर सच ए क्लेवर क्लॉक्स फिक्स माई रेडियो. अगर तुम्हें हमें सच में सबसे ज्यादा मालूम है तो मेरा रेडियो ठीक करके दिखाओ. लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल. वी आर लॉस्ट इन द न्यू सिटी बिकॉज यू ट्राई टू बी क्लेवर क्लॉक्स. देखिए ये क्लेवर क्लॉक्स है. एस लगा हुआ है फिर भी इसके साथ ए लग रहा है. तो ये जो क्लॉक्स है ना ये इसको कहते हैं रॉयल प्लूरल. ये दिखने में प्लूरल होता है मगर एक्चुअल में सिंगुलर है. एंड नेवर ट्राई टू रीच अदर फॉर हेल्प. देखो अब हुआ क्या है इस सेंटेंस में. इस सेंटेंस का मतलब है कि हम एक नए शहर में आए और हम खो गए क्योंकि तुम बहुत चंट बनने की कोशिश कर रहे थे, तुम बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे और तुमने किसी से हेल्प नहीं मांगी, तुमने किसी से रास्ता नहीं पूछा और हम खो गए एक नए शहर में. वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं. माय ब्रदर इज सच ए क्लेवर क्लॉक, ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्विज. मेरा भाई सच में एक बहुत शातिर दिमाग वाला है क्योंकि वो हर बार क्विज में फर्स्ट आता है. तो ये चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि क्लेवर क्लॉक्स जो वर्ड है ये वर्ड आप अनोइंग बंदे के लिए तो यूज करते ही हो मगर एक ऐसे बंदे के लिए भी यूज करते हो जो सच में जानकार हो सारी चीजों का, वो एक्चुअली न्यू a lot of things or more things than others as well. So let me know if you have any doubt or any question regarding this phrase. Okay, let's move forward. I don't think so you have any questions. Let's move forward. Uh, Coming to the word root analysis and pronunciation, so I think someone has some question. Please explain again. Okay. Uh, देखो मैं आपको क्लेवर क्लॉक बताता हूँ. देखो क्लेवर क्लॉक क्या हुआ. एक ऐसा आदमी जो ये सोचता है कि उसको सब मालूम है और इस चक्कर में आप उससे इरिटेट होना शुरू हो जाते हो. इसको क्लेवर क्लॉक्स कहा जाता है. और क्लेवर क्लॉक्स की एग्जांपल देखो आप. इफ यू आर सच ए क्लेवर क्लॉक्स फिक्स माय रेडियो.
अगर तुम सच में इतने चालाक हो जितना तुम बनते हो तो मेरा रेडियो ठीक करके दिखाओ। अब इसमें दो चीजें समझने वाली। एक, क्लेवर क्लॉक्स एक सिंगुलर वर्ड है, जबकि इसके आगे एस लगा हुआ है, और हम जानते हैं कि जिन वर्ड्स के आगे एस लगता है वो प्लूरल होते हैं, तो इसलिए ये रॉयल प्लूरल है। ठीक। और क्लॉक्स क्यों इसका नाम है, क्लॉक क्यों नहीं है, इस रूल को आप इस तरह से समझिए कि जैसे हम चश्मे को स्पेक्टेकल्स या ग्लासेस कहते हैं, हम स्पेक्टेकल या ग्लास वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि वो पेयर में होते हैं, वो दो एक साथ होते हैं। अब चश्मा ऐसा तो होता नहीं कि एक आंख में है और एक आंख में नहीं है, जूते ऐसे होते नहीं कि आपने एक पाँव में डाला और एक पाँव में नहीं डाला। जूते हमेशा दो एक साथ चलेंगे, चप्पल आपकी हमेशा दो एक साथ चलेंगे, इसलिए क्लॉक्स जो है ये हमेशा एस के साथ आता है, क्लॉक्स, ये अकेला वर्ड क्लॉक नहीं होता। सो आई थिंक ये क्लियर हुआ, या यू हैव एनी मोर डाउट्स? I think it's clear. Let's move. Uh, word root analysis. Okay, okay, okay. It's clear. Let's move. The first word is ANA, and the second that we are going to understand today is ANDR. अब देखो एक चीज, ANDR एक सेपरेट वर्ड है और इसके आगे ओ लग जाता है तो ये एंड्रो बन जाता है। अब बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि एंड्रो अपने आप में वर्ड है, एंड्रो अपने आप में वर्ड नहीं है। ANDR रूट है और इसके आगे ओ लगता है अलग से। इसकी एग्जांपल में आप समझोगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। द थर्ड वन इज ANIM, और फोर्थ है ANN और ENN। अब देखो, हम पढ़ तो ANN रहे हैं और इसके आगे ENN, इन दोनों की एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन एक है। और जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं ना, या फिर इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं वो साउंड्स हैं, वो कोई रिटन थिंग नहीं है कि जिसके बाद जिसमें कंफ्लिक्ट पैदा हो। इसलिए ANN और ENN एक ही बात है, इसको आप लिखा अलग अलग तरीके से जाते हैं मगर इसकी साउंड एक ही है। हम पहला वर्ड देखते हैं ANA। इसके हम एनालाइज करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ANA का मतलब होता है अप, ऊपर, बैक, पीछे, अगेंस्ट, खिलाफ, अगेन, दोबारा, या थ्रू आउट, पूरे का पूरा। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ANALYSIS, एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, एक क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज का शोध करना या अध्ययन करना, किसी चीज को गौर से जांच पड़ताल करना, उसको एनालिसिस कहते हैं। और एनालिसिस से ही अनॉटमी निकली है। देखो, अनॉटमी क्या होती है, अनॉटमी होता है कि जब हम किसी चीज को काटते हैं तो उसके अंदर से क्या स्ट्रक्चर निकलता है। ठीक है, अनॉटमी, द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग एज विजिबल व्हेन कट अप फॉर एनालिसिस। किसी चीज को एनालाइज करने के लिए जब काटा जाता है, खोला जाता है, तो जो चीज उसके अंदर दिखती है उसको हम अनॉटमी कहते हैं। जैसे हमारा स्केलेटन है, हमारा जो ढांचा है अंदर हड्डियों का, वो हमारी अनॉटमी है। अगर हमारी स्किन को काटा जाएगा तो हमारे अंदर से हड्डियों का ढांचा निकलेगा, तो वो हड्डियों का ढांचा हमारी अनॉटमी है। वैसे ही अनॉटमी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिजम्स के बारे में, फिजियोथेरेपी वालों को, डॉक्टर्स को। फिर है एक एनाक्रोनिज्म। अब एनाक्रोनिज्म देखो क्या है, इसमें दो वर्ड्स हैं जो रूट आपको याद रखने। एक तो आ गया ANA, एना। एना का मतलब हो गया बैक, और CHRON। अब जिस भी वर्ड में क्रोन वर्ड यूज होता है ना, जिस भी वर्ड में क्रोन होता है, क्रोन से आप एक चीज याद रखिएगा, क्रोन का मतलब होता है टाइम या रिलेटेड टू टाइम। तो एनाक्रोनिज्म हो गया नॉट बीइंग इन द राइट प्लेस इन टाइम, कि मतलब आप सही वक्त पे तो आए हो मगर सही जगह नहीं आए हो। इसको आप दो तरह से ले सकते हो। इसको आप फिजिकली एक सही प्लेस भी सोच सकते हो कि आपने मेरे घर आना था लेकिन आप मेरे पड़ोसी के घर चले गए, पहुंचे आप टाइम पे हो मगर किसी और जगह पहुंच गए, जहाँ जाना चाहिए था वहां नहीं पहुंचे। और इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो कि आप अ, आपको 10-12 साल हो गए काम करते हुए, और अब आपका वक्त सही है, 13 साल का वक्त सही है प्रमोशन के लिए, मगर आपको प्रमोशन डायरेक्टर की मिलनी चाहिए थी, आपको मिल गई मैनेजर की। तो डायरेक्टर मैनेजर से बड़ा ही होता है, तो उसमें भी हम एनाक्रोनिज्म वर्ड यूज करते हैं कि हाँ, आपका वक्त तो सही है मगर आपकी जो पोजीशन है या फिर जो आपकी जगह है वो सही नहीं है। लेट्स गो टू द अदर सेक्शन, एंड आर ओ। इसको देखो, ANDR और इसके आगे ओ, इसका मतलब होता है मेल या मैन। एंड्रो
गायनस। अब देखो गायनी जो वर्ड है ना, GYNE या GYNO, इसका मीनिंग होता है फीमेल, और एंड्रो का मीनिंग होता है मेल। तो एंड्रोगाइनस मतलब जो मर्द भी हो औरत भी हो, बोथ मेल एंड फीमेल। इसको आप फिजिकल के तौर पे भी ले सकते हो, जिसको हम थर्ड पर्सन थर्ड जेंडर कहते हैं, या फिर आप इसको एक इस तरह से भी ले सकते हो, एक ऐसा इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत जिसके अंदर मर्दों की भी खासियतें हैं और औरतों की भी, उसके अंदर मर्दों की आदतें भी हैं और औरतों की भी, इस तरह से भी आप ले सकते हो। द सेकंड इज एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो इंसानों को रिजेंबल करे, रिजेंबलिंग ए ह्यूमन, इज कॉल्ड एंड्रॉइड। और मिजेंड्री, मिजेंड्री होता है मर्दों के खिलाफ नफरत, ठीक है। देखो फोबिया होता है डर, और एंट्री होता है नफरत, या मिस होता है नफरत, ठीक है। तो मिसएंट्री हो गया मर्दों के खिलाफ नफरत। लेट्स गो टू द अदर सेक्शन, जिसमें हम ANIM के बारे में पढ़ेंगे। ANIM, अब ये जो वर्ड है ना एनिम, एनिम का मतलब होता है लाइफ या स्पिरिट। देखो इसमें स्पिरिट साउल नहीं है, मतलब इसमें स्पिरिट जो है वो रूह को नहीं कहा जाता, इसमें स्पिरिट नफ्स को कहा जाता है। नफ्स और रूह में डिफरेंस आपको मालूम है, ठीक है। तो पहला वर्ड है एनिमल। एनिमल एक जानदार ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा हो गया एनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है टू मेक अलाइव, जान डालना किसी चीज में। आपने एक कार्टून की वीडियो बनाई और उसके अंदर थोड़ी सी एक्शंस डाल दी, तो हम उसको बोलेंगे आपने उसको एनिमेट किया, आपने उसमें जान डाल दी। और फिर तीसरा है इक्वेनिमिटी। अब इक्वेनिमिटी का क्या मीनिंग होता है? ऑफ बैलेंस्ड स्पिरिट, जिसका नफ्स जो है वो कंट्रोल में हो अपने, उसको हम बोलते हैं दिस मैन इज एन इक्वेनिमिक मैन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। ANN और ENN। अब देखो इसमें क्या क्या वर्ड्स आएंगे हमारे पास। ये जो वर्ड है ना ANN या ENN, ये ईयर के लिए इस्तेमाल होता है, साल के लिए। अब पहला वर्ड है इसमें एनिवर्सरी। एनिवर्सरी इज एक ऐसी तारीख जो साल में एक बार आए। जिस तरह रमजान साल में एक बार आती है, ईद उल फितर रमजान में एक बार आती है, दिवाली एक बार आती है, आपका बर्थडे एक बार आता है, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी एक बार आती है। तो एनिवर्सरी का मतलब फंक्शन नहीं होता। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि एनिवर्सरी हो गया फंक्शन, लेकिन एनिवर्सरी होता है एक ऐसी तारीख जो साल में एक बार आए। फिर आता है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है कि साल में एक बार होने वाला। जैसे सर्दियां साल में एक बार आएंगी, गर्मियां साल में एक बार आएंगी, अ, फसल साल में एक बार कटती है, तो हम बोलते हैं एनुअल हार्वेस्ट, ठीक है। वैसे ही आपके फाइनल एग्जाम साल में एक ही बार होते हैं, तो हम बोलते हैं एनुअल एग्जाम्स। फिर आता है मिलेनियम। मिलेनियम होता है 1000 ईयर्स, एक टाइम पीरियड, 1000 साल का टाइम पीरियड, उसको हम बोलते हैं मिलेनियम। तो हम बोलते हैं ना वी आर 21st सेंचुरी मिलेनियम मैन, या मिलेनियम बॉय, या मिलेनियम गर्ल। इसका मतलब हम 21वीं शताब्दी के नहीं, शताब्दी के 21वीं सदी के 1000 साल में से पहले जो 100 साल है, हम उसको बिलोंग करते हैं। हम 21st सेंचुरी के पहले 100 साल को बिलोंग करते हैं। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दीज वर्ड्स, और यू हैव एनी क्वेश्चन? लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। We see in the chat if anyone has any question. Okay, no one has any question. We'll move forward. Let me mute someone who has kept his mic on. Okay, let's move forward with the grammar section. हमने जो लास्ट टाइम ग्रामर सेक्शन में किया था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसका असाइनमेंट आप सबको मिल गया पर अब आप ये असाइनमेंट मुझे दोगे कैसे? फॉर दोज पीपल हु आर न्यू in this session, they should know that you can give me the assignments in three different ways. The first one is you can either WhatsApp me all the answers to this number 8283962490, or you can go to the Society of Free Educators channel on YouTube, which I have created on your request. Otherwise हम सेशन रिकॉर्ड ही नहीं करते थे कभी। तो आप उस चैनल पे जाओ, उसके लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट कर दो सारे आंसर्स, मैं वहां से भी चेक करवा सकता हूँ।
and you can either email those answers to listen@mysophie.com. mysophie है my society of free education freeeducators.com. इसका वेबसाइट अभी कुछ दिक्कत आ गया है, इसका वेबसाइट अभी रिपेयर के मूड में है, आप चेक कर सकते हो mysophie.com से। तो उसका एक्चुअली डोमेन का इशू हो गया है, हम जिससे डोमेन हमने लिया था उन्होंने डोमेन ही किसी और को बेच दिया, तो कंफ्लिक्ट चल रहा है। तो हमने उनकी वेबसाइट डाउन तो कर दी है, मगर अब हम डोमेन वापस लेने की सोच रहे हैं, जो आ नहीं रहा, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो खैर, that's another issue, but you can reach me through these three channels and you can give me your answers. The last date of submission of this assignment is 22nd June. तो और उसके बाद हम आज भी जैसे कुछ लोगों ने मेरे को इसके आंसर किए, तो मैंने रिव्यूज अभी स्टार्ट नहीं किए, बट आई विल स्टार्ट द रिव्यूज फ्रॉम टुमारो and I'll give personal reviews first, and then we can have an agreement on whether we have a review in the next session or not. Although there are people who agreed that they'll get their answers reviewed in the next session so that it will be helpful to everyone. So जैसा आप चाहोगे उस तरह से इस असाइनमेंट को चेक किया जाएगा। अगर प्राइवेटली चाहोगे तो प्राइवेटली, अगर सेशन में चाहोगे तो सेशन में सबके सामने भी उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम ना लिया जाए आंसर्स को चेक करते टाइम, तो वो भी है। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम लेकर किया जाए तो वो भी है। So let's move on to the next section, to the last section of today. So we are again coming to interview skills. अभी तक तो हमारी इंटरव्यू स्किल्स हुई हैं, उसमें हमने सीखा था द फ्लो ऑफ एन इंटरव्यू, कि इंटरव्यू चलता कैसे है, शुरू में क्या होता है, बीच में क्या होता है और उसके एंड में क्या होता है। और फिर हमने देखा था कि हमने उसको एक्चुअली उल्टा शुरू किया था। हमने देखा था सबसे पहली चीज के, जब कोई बंदा ये बोलता है आपको कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर माय कंपनी, उसको कैसे आंसर किया जाए। और फिर हमने देखा था कि इंटरव्यू का पूरा फ्लो कैसा है, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसमें आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, किस तरह के वर्ड यूज करने, किस तरह की इंफॉर्मेशन इंटरव्यूअर को देनी है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर अक्सर पूछा जाता है हर एक इंटरव्यू में, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन या रिजेक्शन होती है, वो होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो हमने ये 3 क्वेश्चन हमने इंटरव्यू स्किल्स में पढ़ लिए थे। अब थोड़ा उससे पहले की स्टोरी पे आते हैं। रिज्यूमे देने से पहले हमें कवर लेटर देने को कहा जाता है। अब कवर लेटर क्या चीज है, कवर लेटर, सीवी और रिज्यूमे, इनमें क्या फर्क है ये भी हम देखेंगे। और कवर लेटर कैसे बनाया जाता है, कवर लेटर बनाया क्यों जाता है, शुरू कहाँ से हुआ, या फिर ये लिखते टाइम क्या क्या दिमाग में हमें रखना है और क्या क्या कागज पे लिखना है, और हमारा कवर लेटर एक्चुअली रिक्रूटर को क्या फायदा देगा, हमें क्या फायदा देगा। देखो, हमें रेज्यूमे, कवर लेटर और सीवी, करिकुलम विटे एक ही फायदा देगा, वो है कि वो हमारा इंटरव्यू शेड्यूल करवाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा इंटरव्यू कैसा जाता है वो हमें बताएगा कि हमें जॉब मिली या नहीं मिली। लेकिन हमारा रिज्यूमे चेक हुआ या नहीं हुआ, हमारा सीवी चेक हुआ या नहीं हुआ, वो हमारा कवर लेटर डिसाइड करता है। So let's go with the interview skills today. We are learning cover letter. So what exactly is a cover letter? देखो, कवर लेटर क्या होता है, ये एक इंट्रोडक्शन होती है जो आप देते हो अपना रिज्यूमे देने से पहले। इंटरव्यूअर को कैसे बताओगे कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया या फिर आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। दिस इज योर कवर लेटर। सो लेट्स गो टू द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ कवर लेटर। एनी मींस यू आर गोइंग टू यूज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द एम्प्लॉयर। हर वो तरीका जिससे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे नौकरी देने वाले को, दैट्स कॉल्ड कवर लेटर। एंड इट कैन बी ए फिजिकल कवर लेटर रिटन ऑन पेपर, एक कागज पे लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ फिजिकल कवर लेटर हो सकता है, या फिर एक ईमेल हो सकती है जिसमें आपने अपने आप को हल्का सा इंट्रोड्यूस किया हो और उसके साथ अपना रिज्यूमे अटैच करके एचआर को सेंड किया हो, या फिर ये एक ट्रैकिंग सिस्टम हो सकता है। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे HCL है, VMware है, अमेजन है। अमेजॉन क्या करती है, अमेजॉन का अलग इससे एक पासपोर्ट पोर्टल है जिसके ऊपर आप अपनी जॉब एप्लीकेशंस डालते हो, और वहां पर वो आप एक प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम है, और वही ट्रैकिंग सिस्टम में जो नोट्स आप लिखते हो दैट इज कवर लेटर। आपने कई बार देखा होगा, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी वेबसाइट पे, या फिर मैं आपको एक सेशन अलग से दिखाऊंगा कि अमेजोन के जब जॉब के लिए अप्लाई करो तो वो आपकी A to Z डिटेल्स लेती है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके
कैडमिशिया का पूरा आपका डिटेल्स लेती है, उसके बाद आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस लेती है, और एंड में वो बोलती है यू कैन पुट एडिशनल कमेंट्स इफ यू वांट टू, और राइट डाउन सम एडिशनल कमेंट्स। अब ये जो एडिशनल कमेंट्स होते हैं ना, ये आपका कवर लेटर होता है। तो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर अबाउट व्हाट इज कवर लेटर। कवर लेटर इज सिंपली द मीन थ्रू व्हिच यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द एम्प्लॉयर। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? देखो, ये कवर लेटर एक ऐसी चीज है जो बहुत साल पहले शुरू हुई थी। ये उस जमाने में शुरू हुई थी जब इंटरनेट नहीं था, ईमेल्स नहीं थी, और ये आज तक कंटिन्यू हो रही है, बस इसकी फॉर्म चेंज हो गई है। देखो, cover letters are from a long time ago when we didn't have computers and we didn't have emails and we didn't have application tracking systems. कवर लेटर उस टाइम की बात है जिस टाइम कंप्यूटर भी नहीं थे, ईमेल्स भी नहीं थे, और एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स भी नहीं थे, एंड यू हैड टू मेल योर रिज्यूमे to an employer about a job opportunity or a job opening that you saw or was advertised. अब उस जमाने में क्या था, जो जॉब की एडवर्टाइजमेंट निकलती थी वो न्यूज़पेपर पे निकलती थी। तो कवर लेटर क्या होता था, आपकी एप्लीकेशन के साथ आप एक अलग से पर्चा लिखते थे जिसके ऊपर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे कि आप कौन हो और आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आपने कहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये ओपनिंग है आप एम्प्लॉयर के पास। तो यहाँ से इसका ओरिजिन शुरू हुआ था। अब इसका एक ही पर्पस है कवर लेटर का, वो है यू यू नीड टू इंसर्ट द कवर लेटर टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपको बस अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, इसके अलावा इसका कोई और पर्पस नहीं है, ताकि एम्प्लॉयर को पता लग जाए कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, टू लेट देम नो व्हाट इज व्हाट इट वाज यू वर अप्लाइंग फॉर। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, इस चीज का पता लगना चाहिए आपके एम्प्लॉयर को या फिर एचआर को। कवर लेटर सिर्फ इसके लिए है। तो लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स ऑफ दिस सिनेरियो। अगर कवर लेटर के बारे में कोई डाउट है तो बताओ अभी, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड और वी कैन मूव फर्दर। चैट में बता दो और रेज योर हैंड और जस्ट टर्न ऑन योर माइक एंड लेट मी नो एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट कवर लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू स्किल्स का। तो मैं बोलता हूँ कि इसको आप नोट करके जरूर रखिए, और कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, इंटरव्यू स्किल्स को जरूर ध्यान से लीजिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये खाली इंटरव्यूज में ही नहीं, आपकी रियल लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल है। Interview skills will always be helpful to you, whether it is an interview that you are giving or if it is your real life. So interview skills are always helpful to you. So let's move to the next section of interview skills. Okay, there is someone who has a question. Please explain again. देखो नवल, मैं आपको बताता हूँ कवर लेटर होता क्या है। आप अपना रिज्यूमे देते हो, रिज्यूमे में आपकी डिटेल्स होती हैं कि आपने क्या पढ़ाई की है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, आपका स्किल सेट क्या है, और आपने किस किस पोजीशन पे काम किया है। तो कवर लेटर और रिज्यूमे में सिर्फ इतना फर्क होता है, कवर लेटर ये दर्शाता है कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो या किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, बस। अब चाहे आप वो ईमेल के थ्रू करो कि मतलब आपने एक ईमेल लिख ली, या फिर अ, आप एक अलग से फिजिकल लेटर लगाओ, या फिर आप एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में जाओ और उसमें अपने कमेंट्स लिखो या नोट्स लिखो, तो वो आपका कवर लेटर है। देखो 3 मिनट रह गए हैं, so I'll move fast, and if you have any doubts let me know on WhatsApp or let me know through a direct message. I'll get it cleared, or we can continue it in the next session. Okay, so moving further, what are all the things that you need to keep in mind while writing a cover letter? कवर लेटर लिखते टाइम आपको दिमाग में क्या रखना है? पहली चीज आपको ये दिमाग में रखनी है कि आप सामने वाले का टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो। देखो क्या होता है कि एक आदमी नॉर्मली एक दिन में, अगर वो रिक्रूटर है, अगर वो एक एचआर है, तो उसको 150 ईमेल आता है एक दिन में। और अगर उसके कंपनी में कोई पोजीशन या कोई ओपनिंग है जॉब की, तो उसको 300 या 450 ईमेल उसको एक दिन में आता ही आता है। तो उसकी हमेशा ट्राई यही रहती है कि वो बस आपकी ईमेल पढ़े और उसको पता लग जाए कि रिज्यूमे में कहाँ देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यू should keep in mind that you should not wait, you are respecting the time of the one who is reading your cover letter. Second thing is, देखो क्या होता है, ज्यादातर रिक्रूटर्स को बस इतना होता है कि वो रिज्यूमे देखे और उनको पता लग जाए कि आपने क्या काम किया और
वो जो स्किल सेट ढूंढ रहे हैं वो उसमें है या नहीं है। तो ये चीज का जो पर्पस है ना, ये भी आपका कवर लेटर कर सकता है। तो कवर लेटर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी लेंथी, ये लंबे नहीं होने चाहिए, और ये एग्जैक्ट पोजीशंस बताने चाहिए रिक्रूटर को कि कहाँ पढ़ना है आप रेज्यूमे में, या फिर आप एक अच्छे व्हाई यू आर ए गुड फिट फॉर द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। और ये सब सब करेंगे इसको, ठीक है। इसका भी एक असेसमेंट होगा। लेट्स गो टू द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए कवर लेटर। लास्ट थिंग ये है कि आपका रिज्यूमे एफर्टलेसली पढ़ा होना चाहिए। मतलब देखो, अगर मैं किसी कंपनी के लिए हायर कर रहा हूँ ना, और मेरे को दिन में 450 या 100 रिज्यूमे भी आ रहे हैं, तो मैं 100 के 100 रिज्यूमे पूरे नहीं पढ़ूंगा, मैं उसके कुछ सेक्शंस पढ़ूंगा। और वो सेक्शंस कहाँ पर है वो मुझे कवर लेटर में दिखता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर किसी शख्स ने लिखा होगा ना अपने कवर लेटर में कि यू कैन फाइंड माय स्किल सेट एट द टॉप ऑफ माय रिज्यूमे, तो मैं बस उसका रिज्यूमे खोलूंगा, उसका टॉप पढ़ूंगा, उसका स्किल सेट देखूंगा कि मेरे जॉब रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है, छुट्टी, मैं उसका इंटरव्यू शेड्यूल करूंगा। ठीक है। मैं कभी पूरा रिज्यूमे नहीं पढ़ूंगा। और रिज्यूमे में क्या चीज पढ़नी है या क्या नहीं पढ़नी है, ये आपका कवर लेटर डिसाइड करता है। So I guess we are lacking time today. We shall keep it this much and we shall continue it in the next session. If you have any doubts, you can let me know. Um, we shall continue it in next session for sure. Thank you guys. You have been very wonderful today. There was no disturbance at all. And have a good day. Bye bye.